In today's episode, we are going to study the poem Childhood, prescribed in class 11 syllabus by Marcus Nathan. Marcus Nathan uh, is a Norwegian writer, and he is the head of a research institute there. His very famous poems include, or the books include The Thief, The Messenger. He has also written a beautiful sonnet, Adolescence. Means his area is around childhood or children. He has talked about the children, their behavior in many of his poems. So he is a Norwegian writer. Norway is a beautiful place which is at the top in many indexes in the world, like Human Development Index, development, then literacy, quality of life, happiness. They are at the top. Although it's a very small country, but still they have maintained the quality in everything. Let's begin with the childhood. Childhood is a beautiful poem. Now, the question is, what is childhood? Childhood is a phase where children are innocent. It's a place where we don't know the difference between the right and the wrong. The mischiefs are played by the children, and it is regarded as a mischief. But if the same things you do as an adult, then you are prosecuted for that. So that is childhood. In childhood, your follies are excused by your parents, by your elders. अरे बच्चा है, सोचकर छोड़ दिए जाते हैं. अरे बच्चा है, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया. So the childhood is a phase where you are or where a child is considered innocent. ठीक है. और ऐसा समझा जाता है कि वो नादानी में बहुत सी चीजें हरकतें कर देता है जिसकी वजह से उसको एक्यूज नहीं किया जाता है. So the first question which Marcus Nathan raises in the very beginning of the poem, which is refrain also, ये question बार बार उन्होंने इस poem में पूछा है, when did my childhood go? So when did my childhood go? पूछ रहे हैं मेरा बचपन कब चला गया, मुझे पता ही नहीं चला, लगा कि मैं कब बड़ा हो गया. He says, लोग मुझे बड़ों की तरह ट्रीट करने लगे. People started treating me like elders, like adults, no more like children. Was it the day I ceased to be 11? Ceased का मतलब stop. तो कह रहा है जब मैं टीनेजर से बड़ा हो गया या 11 से बड़ा हो गया, जब मैं 12 साल का 13 साल का हो गया. 11 is just a number. It is in metonymy, figure of speech, मतलब substitution for all other age groups. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, something like that. टीनेजर से ऊपर निकल गया. So 11 is just a number. तो कह रहा है क्या मैं जब इस एज को क्रॉस कर गया तो खाली एज को क्रॉस कर जाना बड़े हो जाना है? Is crossing a certain threshold of life is the necessary criteria for becoming an adult or being considered an adult? Was it the time I realized that hell and heaven? Now hell and heaven refer to the good and the bad things. बचपन में नहीं छोटे पे कहा जाता था गलत काम करोगे तो नरक में जाओगे, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे. सो दिस नरक एंड स्वर्ग, ये जो नरक और स्वर्ग जो बताया जाता है, व्हाट इज दैट? These are actually the good and the bad deeds which bring you good and bad results or repercussions. आपके अच्छे कर्म आपको अच्छी व्यवहार लोगों का देंगे, आपको लोग अच्छे तरीके से मानेंगे. People will consider you a good personality, a good person if you are helpful, if you are kind, if you are cooperative. Then people will give you help. अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो लोग भी आपकी मदद करेंगे. आप लोगों से विनम्र होकर व्यवहार करेंगे, इफ यू वुड बी टॉकिंग टू देम, बिहेविंग विद देम पोलाइटली, काइंडली, तो वो भी आपसे वैसे ही करेंगे. और हेल क्या है? Hell is narak. So narak is the bad deeds. If you behave with people angrily, people will get angry at you. If you fight with them, they will fight with you. If you beat them, they will beat. आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा. So means to say, वो पूछ रहा है कि was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? So hell and heaven. Also there is metonymy. So hell and heaven refers to, या substitution है, ठीक है, and hell and heaven substitution है. तो
क्या कह रहे हैं, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है वहां पे मेटोनिमी होती है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं कि हेल्प कि किसका सब्स्टिट्यूशन है, बैड एक्शंस का, बैड क्वालिटीज का, और हेवन किसका सब्स्टिट्यूशन है, गुड क्वालिटीज का। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या मैं बड़ा तब हो गया जब मैं अच्छे और बुरे के बीच में फर्क पहचानने लगा, व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन हेल एंड हेवन, अच्छे और बुरे के बीच में, कि the person in front of me or the so called my friend is behaving to me how, अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा है, बुरी तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या जब मैं ये पहचानने लगा तब मुझे ये डिफरेंस पता लग गया कि ये ज्योग्राफी बुक में नहीं मिलते हैं, ये कोई प्लेस नहीं है कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट these are the good and the bad actions which bring you good or bad results accordingly. ठीक है, and therefore could not be was that the day. और इसलिए वो कहता है, क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये तब था जब ये मुझे पता लगा कि अच्छे और बुरे कर्म ही हमको वैसे रिजल्ट्स दिलाते हैं, और इसलिए मैं जान गया कि ये कहीं ज्योग्राफी बुक में नहीं मिलते हैं, ये दीज आर नो वेयर टू बी फाउंड, और दीज आर नो प्लेसेस वेयर अ पर्सन गोज, but these are actually the actions, these are actually the consequences, the repercussions of our actions. क्या वो दिन था, was that the day. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया है, इज एक्सप्रेसिंग इज सरप्राइज कि क्या वो दिन था, क्या वो दिन था जब मैं ये पहचान गया इस तरीके से. दिस इज द टोन, सरप्राइजिंग टोन इज यूज्ड बाय द पोएट. In the second paragraph he says again, when did my childhood go, तो ये रिफ्रेन है. रिफ्रेन इज ऑल्सो अ पोएटिक डिवाइस, जहां पर किसी थॉट को बार बार पोएट पोम में रिपीट करता है, कविता में रिपीट करता है, तो उस थॉट को जब बार बार रिपीट किया जाता है तो उसको बोलते हैं रिफ्रेन. ठीक है, तो फिर से उसने पूछा, once again he is expressing his surprise at this, कि लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट करने लगे हैं, the people have started treating me like adults, so he is expressing his surprise at himself, खुद पे बहुत ज्यादा भौचक्का हो रहा है वो. He is feeling very surprised that why people have suddenly started treating me like adults. I am not an adult. Was it the time I realized that adults were not all they seem to be. तो देखिए द टाइम में जहां कहीं भी यूज हुआ है, it was in the third line of the first passage, whereas it is here in the second line, the time, since these two words both begin with the letter T, so there is repetition of the sound as well as the letter, so there is alliteration here. ठीक है, यहाँ पर alliteration है, जब लगातार दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक ही लेटर से या साउंड से शुरू होते हैं तो उनमें एलिट्रेशन होता है. ठीक है, सो वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, तो क्या मैं बड़ा तब हो गया जब ये समझने लगा कि लोग मुझसे जैसा व्यवहार करते हैं वैसा है नहीं. मैं कलीग बिहेव्स विद मी वेरी नाइसली बिकॉज ही वांट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ मी, वो मेरा लंच कर लेता है, मुझसे पैसे उधार ले लेता है, मेरे साथ घूम फिर आता है, गोस फॉर मूवी, एंजॉयज द टाइम, बट व्हेन आई नीड हिम, व्हेन आई नीड हिज हेल्प, ही इज ऑलवेज एब्सकॉन्डिंग, वो गायब हो जाता है. ठीक है, तो वो गायब हो जाता है. They talked of love. Again, they talked में देखिए both the words are beginning with the letter T. So again there is alliteration here. ठीक है, तो alliteration वो होता है यहाँ पर the words begin with the same letter, two or more than two. ठीक है, so they talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. तो लोग तो हमको समझाते हैं, पॉलिटिशियंस कहते हैं शांति बनाए रखो, पॉलिटिशियंस कहते हैं एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, डू नॉट discriminate on the basis of caste, creed or religion, but they are themselves doing so. They are spreading hatred, they are communalizing the atmosphere, creating differences between the peoples of different religion, उल्टी सीधी बातें करके, that they are dominating you. They just tell me, my children who are studying, just I would like to ask you a question, कि आप हैं और आपका दोस्त है, आपके क्लास में, आपके कॉलेज में, कहीं पर भी वो पढ़ता है, वो किसी भी रिलीजन का है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, बट कैन द बिहेवियर, द लिविंग स्टाइल ऑफ योर
of you, your friend, of your house members and his house members be the same. No two people behave exactly in the same way, in the same religion, in the same caste, anywhere. दो हिंदू हैं, उनमें दोनों में ट्रेडिशन का, एक जगह होली किसी तरीके से मनाई जाती है, एक जगह दूसरी तरीके से. सिमिलरली विद क्रिश्चियंस, somebody celebrate Christmas in a different way, another one celebrates it in a different way. पॉकेट पे भी डिपेंड करता है किसके पास कितना पैसा है. सो नो टू हाउसेस, नो टू पीपल डू द सेम थिंग्स इन द सेम मैनर. एक तरीके से नहीं करते हैं, तो फिर हम एक दूसरे से क्यों जलते हैं. यही वो कह रहा है. They talked of love and preached of love. शिक्षा तो देते हैं प्यार की, प्यार से रहो. प्रीच मतलब शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान बांटते हैं कि प्यार से रहो, लड़ना नहीं चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, सोसाइटी में शांति बनाई देनी चाहिए. बट वो डिफरेंट सोशल, आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू हेट्रेड फैलाते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं. कॉलेज इन और वन ऑफ आवर स्टेट्स इन जम्मू, उसकी मान्यता खत्म करा दी बिकॉज अदर रिलीजन पीपल वर स्टडीइंग देयर. दिस इज द, स्टूडेंट से परवाह नहीं है. हेटरेड, दे वांट टू स्प्रेड हेटरेड टुवर्ड्स द पीपल ऑफ अनदर रिलीजन. तो मान्यता खत्म करा दी. सी क्या कर रहे हैं लोग, व्हाट पीपल आर डूइंग. ये करना चाहिए. स्टूडेंट्स के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि वो कॉलेज था, उसमें और बच्चे पढ़ते, थोड़े दिनों बाद और सीट्स बढ़ जाती हैं और स्टूडेंट्स को फ्यूचर बनाने का मौका मिलता. एंड इंस्टेड ऑफ इट उन्होंने मान्यता ही उसकी कैंसिल करवा दी कि वो दूसरे रिलीजन के लोग ना पढ़ पाए. इज दिस, वो कह रहा है, क्या तब मेरा बचपन चला गया जब मैंने ये सब समझने लगा कि लोग क्या कर रहे हैं. दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर. घर में हाउस मेंबर्स जो हैं वो प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं. साथ में भाई मैं हूँ, मेरे पापा हैं, या मैं हूँ, ये मेरी माँ है, मैं हूँ, मेरे भाई है, मेरी बहन है. whosoever are there, हम दोनों सेम नहीं हो सकते हैं. मुझे लेडीज फिंगर पसंद हो सकती है, मेरी सिस्टर को ब्रिंजल पसंद हो सकता है, बैंगन पसंद की सब्जी पसंद हो सकता है, मुझे हो सकता है एग पसंद हो, उसको एग ना पसंद हो सकता है मुझे मटर पनीर की सब्जी पसंद हो, उसको मटर पनीर बिल्कुल ना अच्छा लगता हो. सेम विद माय फादर मदर, सेम विद माय फ्रेंड. सो कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती हैं दो लोगों के बीच में, बस सब कुछ सिमिलर नहीं हो सकता. तो अब हम अपनी सिस्टर से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने फ्रेंड से हेट्रेट करने लगे, तो दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग टू डू. तो कह रहे हैं कि but did not act so lovingly was that the day. तो क्या तब दिन था जब वो इस तरीके से बिहेव करते थे और बातें तो प्यार की करते थे और हेट्रेड फैलाते थे. तो जब दो लोग एक जैसे कभी नहीं हो सकते किन्हीं भी चीजों में. ठीक है, घर में ही सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं. किसी को मैगी पसंद होता है, किसी को अभी मैगी खाना है, किसी को सैंडविच खाना है, तो किसी को ऑमलेट खाना है. एवरीबडी हैज डिफरेंट चॉइसेस. तो वो कह रहा है, क्या तब वो दिन था जब मैं ये समझने लगा कि बड़े लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बट वैसे बिहेव नहीं करते हैं, वैसे एक्चुअल में नहीं है. दे हेट, दे स्प्रेड हेट्रेड टू सॉल्व देयर सेल्फिश मोटिव्स. फिर से थर्ड पैराग्राफ में फिर से वो क्वेश्चन पूछ रहा है. सो अगेन देयर इज अ रिफ्रेन. रिफ्रेन क्या बताया था? द थॉट व्हिच इज रिपीटेड. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड में देखिए अलिटरेशन है, एम से दोनों वर्ड शुरू हो रहे हैं. तो अभी क्या बताया था? व्हेन द वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर देयर इज अलिटरेशन. दो या दो से ज्यादा. सो वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइन? क्या तब था जब मुझे ये पता लगा कि मेरा दिमाग मेरा है, यानी कि मैं सोच सकता हूँ. टू विच एवर वे आई चूज मीन्स आई कैन एक्सरसाइज माई राइट्स. तो बच्चे जब होते हैं, जैसे आप टीनेजर्स होते हैं, या जब तक 12th क्लास में पढ़ते हैं, आपके पेरेंट्स आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं. हालांकि हाई स्कूल के बाद पेरेंट्स आपको चॉइसेस देने लगते हैं. अब तो थोड़ा और जल्दी हो जाता है, बच्चे डिमांडिंग हो गए हैं, तो उनको खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में. हमारे जमाने में इन आवर टाइम वी डिड नॉट हैव राइट. जो भी कपड़े दे दिए गए पहन लिए गए. मम्मी पापा विल डिसाइड व्हाट आई हैव टू वेयर, व्हाट आई हैव टू ईट. ओके, बट इन योर, आप जो पढ़ रहे हैं इसको, इन योर टाइम यू हैव गॉट चॉइसेस. आप अपनी मर्जी से पहन सकते हैं कपड़े विद द लेटेस्ट फैशन. आप अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं. कभी पिज्जा खाना है तो कभी मैगी, तो कभी बर्गर, समटाइम्स चाउमीन, नूडल्स, और समटाइम्स चिकन, मटन, व्हाटएवर आर योर चॉइसेस.
तो आप ये खा सकते हैं, आप मॉम से कहते हैं, पापा से कहते हैं, समटाइम्स दे आल्सो अलाउ यू टू ऑर्डर, है ना। तो रेस्टोरेंट से आ जाता है। तो कह रहा है कि क्या ये तब था जब मैं अपनी मर्जी से चीजें करने लगा, टू यूज विच एवर वे आई चूज, मेरा दिमाग अपना था, मुझे दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। रिड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन। तो मैं अपनी तरीके से बातों को कह सकता था, मैं भी किसी डिस्कशन में पापा के साथ बैठकर पार्टिसिपेट कर सकता था, और आई कुड एक्सरसाइज माई थॉट्स इन ए मीटिंग समवेयर। ठीक है, तो मैं 11 साल का नहीं था, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि मैं 12 साल का था, बड़ा भी हो सकता हूँ। क्रॉसिंग द वोटर्स एज, जब एडल्टहुड मिल जाता है, एंड द चिल्ड्रन कैन एक्सरसाइज देयर राइट्स। ठीक है, तो तब उनको कंट्री भी उनके अधिकार प्रोवाइड करती है। तो कहता है कि वॉज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, क्या तब था जब मेरा दिमाग अपना था, क्या तब था जब मैं अपनी तरीके से सोच सकता था, मेरा भी अपने थॉट्स पे अधिकार था, क्योंकि थॉट रीडिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। तो वैसे भी थॉट्स चुराना क्या होता है, प्लेजरिज्म होता है, क्राइम है। आप किसी की किताब लीजिए, उसको अपने में ट्रांसलेट करके और फिर से छाप दीजिए, तो आप जेल जाएंगे। आप किसी के आइडियाज लीजिए आर्टिकल से, किसी से न्यूज़पेपर से, और फिर अपने भाषा में चेंज करके थोड़ा बहुत एडिट करके रिड्यूस कर दीजिए, तो दैट इज अ क्राइम, दैट इज नॉट अलाउड। तो कह रहा है कि क्या तब था जब मैंने ये सब चीजें रियलाइज की, दैट आई कैन प्रोड्यूस माई ओन थॉट्स एंड आई हैव एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन, एंड मेरे ओपिनियंस फैमिली में मेरे कंसीडर भी किए जाते थे। पापा भी मेरी बात सुनने लगे, मम्मी भी मेरी बात सुनने लगी, हम फैमिली मैटर्स में थोड़ा बोल सकते थे। क्या वो तब समय था, वॉज दैट द डे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब मेरे थॉट्स मेरे थे, यानी कि सब कुछ मेरे ऊपर इम्पोज नहीं किया जाता था, फैमिली मेंबर्स भी मेरी बातें मानने लगे, सुनने लगे। कि कहीं पे फैमिली ट्रिप बनानी है, तो मुझसे भी पूछा गया कहाँ चलोगे, तो मैंने कहा वी वुड प्रेफर टू गो टू रोहतांग, आई वुड प्रेफर टू गो टू राजस्थान। सो मेरे चलो अब की तुम इनके हिसाब से चलते हैं, तो मुझे वैल्यू दी गई, माई थॉट्स वर गिवन इम्पोर्टेंस। सो वॉज दैट द डे, क्या ये तब दिन था जब मुझे भी इम्पोर्टेंस मिलने लगी फैमिली में। ही इज सेइंग दैट। Then the last paragraph once again refrain, where did my childhood go, फिर से इसी थॉट को पूछ रहा है, यानी कि वो बता रहा है कि बचपन हमारा कब चला जाता है, जब हमको वैल्यू मिलने लगती है, जब हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। बचपन में इनोसेंस होता है, माइंड उतना डेवलप नहीं होता है, by experience of life, by seeing the circumstances, by the help of the parents and the teachers. When our mind grows, then we start realizing how the life, how life works, how people behave. Everything is superficial, सब कुछ false है, जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। ठीक है, आपके अच्छे जो लोग हैं वो कुछ ही होंगे, जो आपसे सच में प्यार करते हैं, जो आपके बारे में सच में अच्छा सोचते हैं। मोस्टली पीपल वांट टू ब्रिंग यू डाउन, मोस्टली पीपल आर जेलस ऑफ यू। यही बात वो सिखाना चाह रहा है इस टाइटल से, कि बचपन, अगर आप बड़े हो गए हैं तो इन सब चीजों को पहचानना सीखिए। तो वो क्वेश्चन कर रहा है कि मैं देखता हूँ कि सब जगह बचपन में तो बताया जाता था सबसे प्यार से रहना चाहिए, सबसे अच्छे से रहना चाहिए, सबकी बातें सुनना चाहिए, और अब देख रहा हूँ कि चीजें बदल गई हैं। ठीक है, बचपन में मुझे सबकी सुननी पड़ती थी, अब मैं भी अपनी बात कह सकता हूँ। सो आई एम नॉट अ चाइल्ड। सो ही सेज व्हेन वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। तो कह रहा है शायद मैं बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीजें समझ गया हूँ, सीख गया हूँ, तो शायद ये एक ऐसी जगह पर चला गया है जहां पर अब वो बचपन की एज यानी कि खो चुकी है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, इससे पहले एक चीज छूट गई थी, जो इससे पहले वाला पैसेज है उसकी फोर्थ लाइन में, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर, तो थॉट्स दैट इसमें भी एलिट्रेशन था। ठीक है, वो छूट गया था। तो कह रहा है वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, तो क्या ये एक ऐसी जगह चला गया जहां से वापस नहीं आ सकता? यस ऑफ कोर्स, you are no more a child if you have been granted the status of an adult in the house, in the family, in the society, in the place you work. You are no more a child. तो अब आप उस बच्चे की तरीके से बिहेव करेंगे, शरारतें करेंगे, तो वो शरारतें
क्राइम में बदल जाएंगी। आप फ्रेंड को छेड़ देते हैं, कलीग्स को छेड़ देते हैं, आप कलीग्स का लंच चुरा लेते हैं, बैग से कुछ निकाल लेते हैं। बचपन में छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, कोई बात नहीं थी, आपस में चल जाता था। कभी शिकायत कर दी टीचर से तो थोड़ा बहुत समझा दिया गया, डांट दिया गया। बट अब करेंगे तो वो चोरी हो जाएगी, है ना। नो, आप बच्चे थे तो किसी के घर में चले गए, पुकारते हुए, किसी का नाम लेते हुए चले गए। नाउ यू हैव टू नॉक एट द डोर, यू आर नो मोर अ चाइल्ड, यू शुड नॉट एंटर समबडीज रूम विदाउट नॉकिंग। सो दोज आर द थिंग्स। आप बच्चे थे तो खेलने निकल जाते थे, सुबह सुबह आप बच्चे थे तो पता चला लाउड म्यूजिक प्ले करने लगे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, एक दो बार समझा दिया। अब करिए तो पीपल विल फाइट, अब करिए तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इन योर ओन हाउस योर पेरेंट्स माइट ऑब्जेक्ट। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। तो कह रहा है वो तो एक इन्फेंट के फेस में हिडन है, यानी कि बचपन में था, बचपना, चाइल्डहुड। अब हम बच्चे नहीं हैं, क्योंकि हम अभी जो उसमें ऊपर चीजें बताई, दैट he has started understanding how people behave, he has started understanding their good and the bad actions bring good and bad results. तो वो बचपना बचपन में होता है, जब हम इन चीजों को समझते नहीं हैं। इसलिए दैट्स ऑल आई नो, अब मुझे पूरी तरीके से पता लग गया है। नाउ आई फुल्ली नो दैट आई एम नो मोर अ चाइल्ड, बिकॉज आई कैन सी द बिहेवियर ऑफ द पीपल, द बिहेवियर टुवर्ड्स मी. I can realize that good and bad actions bring good and bad results. I know that I can share my opinion. My opinions will also be considered. मेरे भी opinions को value दी जाती है सब जगह, जहां भी मैं कहता हूँ मेरी भी बात मानी जाती है। जब बच्चा था तो नहीं मानी जाती थी. So he finally says, इसलिए अब मुझे finally I know, that's all I know. Finally मुझे पता लग गया है कि मैं बच्चा नहीं. So what does he mean finally? That childhood is a phase of innocence where your follies, आपकी mistakes सब माफ कर दी जाती हैं, आपके opinions matter नहीं करते हैं, आपसे पूछा नहीं जाता, आपकी बहुत सारी चीजें मानी नहीं जाती हैं, ठीक है। और हम शैतानी कर लेते हैं, हमको नहीं मालूम होता है सही क्या है गलत क्या है, तो हमारी सब गलतियां जो है माफ कर दी जाती हैं। बट वही चीजें जब हम बड़े होते हैं, सेम एक्शंस वी कमिट, then they are not excused. Okay, so that's where the childhood went. So I hope you understood the poem. It will be followed by some important questions which you should study for your better future. Hope you enjoyed the explanation of the childhood poem. You can see other poems explanation, other chapters explanation. All the best for your future. Thank you.